नाम अनादिल है और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट काम करती हूँ बुश हॉस्पिटल में। आज हम सब इकट्ठा हैं टू डिस्कस अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज़। You would ask me कि मैंने ये टॉपिक क्यों पिक किया, I mean other than the fact that I'm a kidney doctor, but just not because of that, also because it's a global threat right now. You will be surprised to know कि diabetes के twice the times of diabetes फिलहाल chronic kidney disease का burden है worldwide, and so it's very important कि हम उन non communicable चीज़ों के बारे में बात करें जिसको अगर हम शुरू से prevention की तरफ अगर हमारा aim रहे तो we can curtail the repercussions such as dialysis and the cost, especially if you are a low income country. ठीक है जी, with that we start. The way I made this presentation was I wanted this to be as non-medical as possible ताकि हम सब इसको समझ सकें. Obviously बात है it could just not be non-medical, so first half I tried to keep it as non-medical, last half because I'm talking about medications तो थोड़ा सा medicine medical lingo इसमें आ जाएगी. So we'll start with discussing what's the purpose of kidney function को कैसे measure करते हैं, chronic kidney disease क्या होती है, उसकी prevalence worldwide और पाकिस्तान में कैसी है. We'll talk about diabetes because that's the main cause for CKD worldwide, उसकी management and some takeaway points. ठीक है जी? अच्छा, so we'll discuss first is कि kidneys का role क्या होता है. And so what we can do is कि अर्सलान आप मुझे बताते जाओ yes or no, true or false, और फरियाल बताती जाएगी if this is, so you know one person can do that and we can do it combinedly. ठीक है जी? So kidneys help us to remove natural waste products and extra water from your body. True or false? True. So फरियाल can you click that? आगे press करती जाओ. ठीक है. So that's true. Kidneys help body to pump blood. True or false? False. हाँ, I mean डॉक्टर कामरान इधर होते तो कहते प्लीज ये तो हार्ट का काम है. ठीक है जी. Kidneys help to make red blood cells. Is that true? Okay. Okay. Kidneys help our body to breathe. False. Exactly. Kidneys help to balance important minerals in your body. True. इसको आगे करती जाइएगा. Kidneys help to maintain your blood pressure. True. And kidneys help to keep your bones healthy. That's also true. So मैं चाह रही थी कि नॉन मेडिकल लोग हों, बट ये सारे मेडिकल लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है, you know, this was going to be right. But what I wanted to emphasize here is कि for most people think that kidneys are just making urine. It's just not simple as that. Other complex jobs and mechanisms are involved, and so it doesn't come as a surprise that kidneys are responsible for making blood cells, minerals, blood pressure, bone health, all of that. ठीक है? So that's हाँ जी बोले. जी 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 हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने जी. जी बिल्कुल ये इनडायरेक्टली रोल है, बट थैंक गॉड आपने इसको कहा कि दैट्स नॉट द जॉब बिकॉज वी हैव अ पल्मोनोलॉजिस्ट एज वेल इन द रूम. ठीक है. So अब next question आता है कि अच्छा भाई if this is now you know so many purposes of kidneys, then we should take care of them. And how should we start by taking care of our kidneys is कि हम kidney का function check करें. Unlike other organs in the body, kidneys do not tell you that they are sick until they are very late. It's very late, and so you need to regularly get your lab tests done, your blood draws, ताकि आपको पता चल सके कि आपका kidney का function normal है या नहीं. So again ये मैंने लोगों के लिए रखा था, but this room is filled with medical personnel, so we'll just go fast. So you have ways like serum creatinine, BUN, calculate GFR, and urine analysis करना है to pick up proteins in your urine. Next please. So how to measure kidney function part 2. What is GFR? So serum creatinine, BUN, these are markers of waste products build up in your body. So in a steady state आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और किडनीज उसको एक्सक्रीट कर रही है. वो नॉर्मल हार्मनी को हम कह देते हैं कि ये नॉर्मल है. वो अगर क्रिएटिनिन मेजर करें तो वो सीरम क्रिएटिनिन है, BUN है तो वो BUN है. बट इनमें प्रॉब्लम ये है इन मार्कर्स में कि जब हम इनको मेजर करते हैं तो you can't compare because not everybody is built similarly, right?
It's not like you're comparing apples with apples. It's always like कि एक 65 years old sarcopenic patient होंगी जिनका बिल्कुल reduced muscle mass होगा, and then you're using the same tool to check कि kidney function एक 25 years का young muscular guy का कितना है. So it's not a standardized way of measuring kidney function, and that's where GFR comes in. The best way to understand GFR would be if you're making chai or making coffee by the drip method. आप फिल्टर के ऊपर आपने coffee beans रखे या आपने चाय के leaves रखे, that's equivalent to your kidney, the filter. इसके ऊपर आप गरम पानी डालते हैं, that's equivalent to your blood flow, ठीक है. और उसमें से फिर कितना तेजी से या कितना slowly आपकी कॉफ़ी या चाय बन रही है जो ड्रिप करके आ रही है, that is equivalent to your GFR. So keep that in mind. That's basically in human आप बहुत nephron level पर चले जाते हैं, and that's what you calculate GFR to understand कि kidney का function क्या है. Next कर देंगे फयाद. So the question is, ये तो मैंने आपको बता दिया था recipe how to make chai and coffee, but that's not as simple as that. Body में चाय और coffee तो नहीं बन रही. So this is how you actually calculate GFR in your body. One way is to use equations. Very smart people out there, they made different equations over a period of time. CGF होती थी 1976 में, फिर MDRD equation आई, most latest CKD epi है जो हर लोग use कर सकते हैं. That's through equations. That's through using your age, your gender, your weight, and serum creatinine. And then you compute it in the calculator and you find ये आपका GFR है. दूसरा ये होता है कि आप 24 hours आप अपना यूरिन कलेक्ट करें और उसको फिर आप इस फॉर्मूला में डालते हैं. आप क्रिएटिनिन यूरिन में चेक करते हैं, सीरम में चेक करते हैं और फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं. So 24 hour creatinine clearance हर पेशेंट में चेक करना, it's quite cumbersome. Try catching your urine for 24 hours 7. So most of us rely on the estimated ones. The problem with the estimated equations are कि ये सारी आपकी वेस्ट ने बनाई थी. So think for a second कि हम चाइना से कोई कपड़े मंगवाएं और हम कहेंगे हमने अपनी पॉपुलेशन में बेचने हैं. Well, Chinese people are built differently. They have different, कद काट उनका हमसे बहुत मुख्तलिफ है. और वही कपड़े अगर हम पहनने की कोशिश करेंगे हम छोटे पड़ेंगे. तो something similar on scientific level as well. Like your equations वगैरह आपकी उस हिसाब से बनी हुई हैं. So when I was looking for how do you calculate GFR in our population, I was very pleasantly surprised. अब आगे प्रेस करिएगा kindly. कि 2017 में एक्चुअली खान ने इन ऑथर्स ने दे केम अप विद अ मॉडिफाइड CKD epi equation. आगे करिएगा. एंड व्हाट दे डिड वाज कि अब प्रेस कर दीजिएगा 2 दफा और ये तो जो फर्स्ट हाईलाइटेड है ये आप समझ लें काइंड ऑफ लाइक योर गोल्ड स्टैंडर्ड है. क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपने 24 आवर्स कलेक्ट करके चेक किया. जो लास्ट वाली कॉलम है ना, क्योंकि ये कट की है स्क्रीन यहाँ पर पूरी नहीं आ रही, जो लास्ट वाली कॉलम है ना वो आपको CKD epi पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेटेड GFR बता रहा है. तो 9.8 इस इक्वेशन ने कैलकुलेट करके दिया और क्रिएटिनिन क्लियरेंस 9.5 है. That's pretty, I mean, remarkable, right? So इस इक्वेशन को जब हम यूज करते हैं हमारी पॉपुलेशन में वो ज़्यादा फिट बैठती है टू रियली कैलकुलेट आवर GFR. बिकॉज रिमेंबर हमारे यहाँ पे जब हम पैदा होते हैं तो maternal health is very different. Most of the mothers are malnourished. That means आपकी orgogenesis जब हो रही होती है pre-term बहुत different होती है. आप जब पैदा होते हैं आप pre-term यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं and even in your adolescent life आपकी nutrition malnourishment में ज़्यादा रहती है. So आपके organ उसी weight height बिल के नहीं बन पाते. So keep that in mind. On top of it आपके risk factors like hypertension और diabetes हमारे South Asian populations में बहुत ज़्यादा है. तो अगर आपका रिजर्व ही नहीं है और उसके ऊपर आपके रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा हैं तो इस तरह की पॉपुलेशन को यू कांट जस्ट से कि ओ अच्छा भाई जो अमेरिकन एक बच्चा पैदा होता है उसकी इक्वेशन पे बेस पे हम ट्रीट करेंगे. ठीक है जी. सो दैट्स जस्ट टू कीप इट बैक ऑफ योर माइंड कि जब आप अपने पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो लैब रिपोर्ट करती है वो सीरम क्रिएटिनिन करती है, हम GFR नहीं कैलकुलेट करते. एंड इट्स वेरी confusing because creatinine लिखा होता है 1 and 1 for most people is a normal lab, but वो हमें देखना होता है कि वो अगर एक sarcopenic patient में है जो कि 65 years की है, well her last creatinine was 0.5, so she has lost half of her nephron mass अगर उनका creatinine 1 है. but अगर creatinine 1 एक adult young male में है that's normal, so calculating GFR will avoid such confusion. ठीक है. so that's the purpose. Next please.
So what is chronic kidney disease? जो late आया मैं ये बता दूँ कि purpose of my CME was to keep it as non-medical as possible. So I've used a lot of cartoons, lots of non-medical stuff. But इत्तेफाक ये कि सारे medical लोग आ गए हैं. So I purposely try to bring it to layman language. ठीक है जी? So what is chronic kidney disease? Kidney को insult होती है, and that insult is reversible. That is called acute kidney injury. Kidney को insult होती है and kidneys are unable to reverse the damage. That is called chronic kidney disease. और हमने एक time frame इसको बोल दिया है, and that's 3 months. So 3 months तक अगर आपका kidney function reduced रहता है, that means that part of your kidney has died, has lost its purpose, and it cannot be recarcinated. You will be very surprised कि पाकिस्तान में जब by the time आप पेशेंट को देखते हैं, CKD पेशेंट को, and he stage 5, तो उनको ऐसा लगता है कि मेडिसिन से मैजिकली सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, और फिर मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इट्स इक्विवेलेंट टू लाइक अ लीफ फॉलिंग ऑफ फ्रॉम अ ट्री, इट हैज मुरझा गया है, बिल्कुल उसकी जान चली गई है, यू कांट पुट लाइफ बैक इनटू दैट फॉलन लीफ. ठीक है जी. CKD स्टेजेस को बेस्ट हम करेक्टराइज करते हैं GFR से, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी. सो गॉड गिव यू 2 kidneys and he even was, he could have given you 1, but he gave you 2, and he was even kind enough. He didn't start you with 100%, he started you with 120%. So I look at GFR in terms of percentage. ठीक है. So you were born with 120%. That is अगर आपके full healthy, you were born on term, really good diet during adolescence, and like good genes and everything. And then you mess up. You mess up in your midlife with bad habits, bad genes, and you start having risk factors. तो आपकी ये जो माइलेज है, जैसे गाड़ी की माइलेज होती है, वो कम होती जाती है. सो फ्रॉम 120 to 90 इट्स योर नॉर्मल, फ्रॉम 90 to 60 इट्स योर स्टेज 1. 60 से 30 जब आप इस तरह समझ सकते हैं, 60% किडनी काम कर रही है, 30% किडनी काम कर रही है, 15% किडनी काम कर रही है, और जब 15 से कम होता है तो दैट इज कॉल्ड CKD स्टेज 5, या इन अदर लैंग्वेजेस दिस इज व्हेन यू नीड डायलिसिस. ठीक है. देयर इज अनदर मार्कर एज वेल, that is you check albumin in your urine. ये क्या होता है? ये होता है कि आप जब यूरिन बनाते हैं, it's just not all water. It has, just like a soup. Bad analogy here, but there is like salt and minerals. So protein basically, and protein की एक type को albumin कहते हैं. And so आपका filter, जो मैंने चाय और कॉफ़ी की वो जो example दी थी, filter जितना ही broken होगा, उतने ही पत्तियाँ नीचे आना और कॉफ़ी बीन्स नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सिमिलरली दैट इन योर किडनी सीविंग इफेक्ट, अगर आपका सीव डिफेक्टेड हो गया है तो फिर ज़्यादा एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि अच्छा भाई फिल्टर ख़राब हो गया बाय मेजरिंग द एल्ब्यूमिन. ठीक है जी, आगे कर सकते हैं. अच्छा, तो ये बिल्कुल भी माइग्रेन करने का मेरा पर्पज़ नहीं था आप लोगों को, बट जिस तरह कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 4 इज द मोस्ट वरीसम, स्प्रेड आउट हो गई है जिसम में. सिमिलरली लाइक दैट CKD स्टेज 5 इज द वन टू वरी अबाउट, अदर देन द ऑब्वियस फैक्ट कि आपको डायलिसिस चाहिए. तो ये जो बेसिकली देखने में ये हीटोग्राम लग रहा है, बट basically that one is less than 65 years old, this is for more than 65 years old. मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ? मैं दिखाना ये चाह रही हूँ, आप आगे प्रेस करती जाइएगा, कि इस टेबल को अगर हम यूज़ करें और हम बोले हमारे पास एक पेशेंट, एक और क्लिक करिएगा, एक पेशेंट है और वो जॉनी ब्रावो है. ठीक है. जॉनी ब्रावो 55 ईयर्स का है और उसको CKD स्टेज 3B है और उसको 300+ एल्ब्यूमिनूरिया आता है. तो ये अदर देन द फैक्ट कि उसको ठीक है रिस्क फैक्टर्स की ट्रीटमेंट चाहिए, CKD ट्रीटमेंट, बट ये इसकी जिस तरह हम क्राइम में प्रोफाइलिंग करते हैं ना, तो ये क्या हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि इसको किस किस चीज़ का रिस्क है. तो वो जब हमने इन स्टडीज से जो पीछे ऑलमोस्ट हीटोग्राम की तरह लग रहा था किया, तो ही इज एट 450% रिस्क ऑफ हैविंग ऑल कॉज मोर्टेलिटी. He is at 200% risk of hospitalization. इनमें MI होने का 350% risk है, stroke 3.8, heart failure 5. तो ये आपके hard outcomes हैं. And just like understand कि CKD 3B का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ओ अच्छा if you don't slow down the progress उसको dialysis चाहिए होगी. It's very complex, it's interconnected. He has a very high chances of ending up in the hospital for multiple other bad reasons. So that is also one of the reasons why we should be talking about CKD.
एंड इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा, which brings me to this part कि what is the prevalence of CKD. During medical school I used to ये पेज आगे कर देती थी, कोई भी टॉपिक होता था उसकी एपिडेमोलॉजी, आई मीन हु वांट्स टू नो अबाउट इट, बट एज यू ग्रो ओल्ड यू अंडरस्टैंड लाइक दीज आर दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू एक्चुअली शुड बी वर्किंग ऑन, क्योंकि हमें जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी कि कितनी फैली हुई है, यू विल नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड फाइंडिंग मीनिंगफुल सॉल्यूशंस दैट आर कस्टम्ड टू योर पॉपुलेशन. ठीक है जी, तो दिस इज अगेन क्या कहते हैं पोल है. सो देयर आर 3 डिफरेंट मिलते जुलते स्टेटमेंट्स हैं, बट आई वांटेड टू सी व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रू प्रेवलेंस ऑफ CKD. ठीक है जी, सो पहला जुमला कहता है कि 850 मिलियन, जो कि लगभग 3.5 टाइम्स द पाकिस्तान साइज, लोगों को CKD है, एंड दैट्स ट्वाइस दैट नंबर ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज. ठीक है, दूसरे जुमले में कहते हैं कि 500 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड CKD है, दैट्स इक्वल टू twice of Pakistan, और ये कह रहे हैं that's like having roughly the same size of people who have diabetes, और लास्ट वाला कह रहा है कि 250 मिलियन लोगों को CKD है, that's like saying half of the people who have diabetes. तो who thinks 1 is the right answer, 2 is the right answer, 3 is the right answer? So let's start with 1. Who thinks 1 is the right answer? कितने लोगों को लगता है कि CKD is twice as common, prevalent than diabetes? Does anybody agree that? Who thinks that diabetes is the most prevalent thing in the world? Or who thinks CKD is the most prevalent? So this came as a surprise. Kindly press कर दीजिएगा. This thing. पीछे जाइएगा जी. तो ये मैं क्यों एम्फसाइज करना चाह रही हूँ? मैं इसलिए एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि जब आपके पास एक पेशेंट क्लिनिक में आता है या एडमिट होता है, आप उसको फ्लोर पे देखते हैं, तो A1C तो हर कोई ऑर्डर करता है, भाई आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, बट सीरम क्रिएटिनिन बेचारे किडनीज को कोई नहीं देखता, जबकि CKD इज ट्वाइस एज कॉमन एज डायबिटीज़. एंड सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि you know, caring for your kidneys and getting lab draws for your chronic kidney disease is very important. आगे चलिएगा. So the question then arises कि ठीक है, ये तो मैं आपको वर्ल्ड डेटा दे रही हूँ, भाई पाकिस्तान के बारे में बात करें ना, हम तो पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं. And I was very happy to see kidney prevalence है. You won't find prevalence of all the diseases in Pakistan, but CKD के ऊपर studies हुई हैं. They're as old as 2005. Dr. Jafar, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और ये खान में थी, उस वक्त प्रेवलेंस 29% थी. दैट्स प्रिटी हाई. आई मीन डायबिटीज़ की इससे कम है. सो 29% CKD इज़ प्रिटी हाई. एंड जब हमने 10 साल बाद 2015 में देखा तो वो रिड्यूस हो गई 25.6. Did we do any heroic measures? I don't think so. I mean 2015 is still 10 years from now, like let that sink in as well. But prevalence कम नहीं हुई, it was just the way they measured GFR. तो I know you must have met nephrologists जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं कि what's the right way to measure kidney function. That's why sometimes it's difficult to interpret the results. But anyways, from this paper जो कि review था of the 4 studies who are out there जो prevalence देख रही थी, उसमें हमें पता चला कि the prevalence is anywhere from 12 to 30%. आगे करिएगा. And then the same paper was also nice enough and they found out that the 5 causes of CKD, जिसमें से the number 1 didn't come as a surprise, which is diabetes. The second one is unknown, third one is hypertension, and 5th is renal stone. यहाँ पर मैं ये ऐड कर लूँ कि एपिडेमोलॉजी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आपने let's say if you are lucky and you do form some policy making on it, it really helps to narrow down कि क्या strategy most affect करेगी. So for instance, when I was reading up on epidemiology in Pakistan, I found out कि Badin is actually called a stone belt क्योंकि वहाँ पर इतना हार्ड वाटर होता है, नॉर्मल लोग इतना कैल्शियम पानी में पीते हैं कि वहाँ पर the prevalence of kidney stone causing CKD is higher than diabetes. तो ऐसी पॉपुलेशन में हम बजाय डायबिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, अगर हम हार्ड मिनरल वाटर को फिल्टर्स उसके बारे में हेल्प करें तो वो इफेक्टिव ज़्यादा रहेगी CKD के बारे में. ठीक है जी, आगे करिएगा. तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हम कैसे CKD को प्रिवेंट करें.
CKD को प्रिवेंट करने के लिए आपको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, और डिटेक्शन भी हमारे पास दो ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये होती है कि हम आएँ और हम एक रूल पास करें कि नहीं भाई, हर बंदा जब 18 साल का होगा उसका, जैसे वैक्सीनेशन हम हर किसी को देते हैं, हर किसी का किडनी फंक्शन चेक होगा। Well, that's population-based screening, and that's not helpful, and for obvious reasons because of the cost. तो हम फिर case-based screening करते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है हम उसको टारगेट करें, और उनमें जब स्क्रीनिंग करेंगे तो चांसेस ऑफ पिकिंग CKD विल बी हायर। आगे प्रेस करिएगा। बट देन दैट इज प्रॉब्ली ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर बंदे का पाकिस्तान में कराएं, बट आई एम जस्ट being a devil's advocate here, that's probably true कि आप case based screening कराएं if you are from a first world country. But if you're from country with low and middle income country, जहाँ पे creatinine check करने की cost is far less than getting a dialysis, और मैं अभी dialysis की भी cost बताऊंगी, तो doesn't it make sense कि when you get opportunity to see a patient, just throw in battery of tests जो आप करा रहे होते हैं, cholesterol check करा रहे होते हैं, उनका A1C check करा रहे होते हैं, to also check what kidneys are doing. I mean, next करिएगा। तो ये सब एक जगह होगी। स्टार्ट में मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि दिस इज़ मोर ऑफ अ नॉन मेडिकल CME, बट यहाँ से थोड़ी सी मेडिकल स्टार्ट होना शुरू हो रही है। तो हम फॉर द सेफ्टी ऑफ टाइम मैंने सोचा था कि हम सिर्फ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर CKD उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डायबिटीज़। So diabetes is the most common cause of chronic kidney disease. Cause कैसे करती है diabetes, chronic kidney disease? अगर मैं बहुत layman language में simpler करके बताऊँ, so basically hyperfiltration हो रही होती है। Hyperfiltration हो रही होती है जिसकी वजह से gloms stretch हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से all the good material, the good stuff, proteins which are supposed to stay in your body, they go out. These proteins then irritate your tubules, and over a period of time, किस चीज़ के बारे में सर? डायबिटीज़ के बारे में? हाँ जी जी। सो मैंने बताया कि डायबिटीज़ वैसे तो मल्टीपल वेज ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज हाउ इट अफेक्ट्स, बट अगर इसको नैरो डाउन कर दो, सो हाइपरफिल्ट्रेशन इज व्हाट द ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टारगेट्स टू डायबिटीज़। अच्छा आपका सही, सो सॉरी, दैट्स अ वेरी गुड वन। सो ये है रेड कलर आपका जो है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। सरफेस एरिया को कंजर्व करने के लिए अल्लाह ताला ने बजाय बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ब्लड वेसल थ्रो करते, इट्स लूप्ड अराउंड, ठीक है। सम पीपल आल्सो से दिस इज अ स्मार्ट गट, यू नो हाउ ह्यूमन गट इज वेरी लॉन्ग एंड इट्स नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, वेल इट लुक्स लाइक अ गट, आपका GI ट्रैक की तरह ये लगता है, ठीक है। एंड सो ब्लड आपका आता है, जो एफरेंट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आता है, ग्लॉम साफ करता है, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना रहा है, इसमें से सारा कचरा बाहर निकल जाता है, और ये जो इस तरफ आई विश आई कुड मूव, जो मेरी तरफ वाला फेस कर है जिसको इफरेंट आर्टीरियल, यहाँ से साफ ब्लड एग्जिट हो रहा है। सो हाइपरफिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि बहुत ज़ोर से, रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ टू मेक कॉफ़ी एंड टी, बहुत ज़ोर से आप अपने पानी को, गर्म पानी को आप फिल्टर के ऊपर थ्रो कर रहे हो, सो दैट्स हाइपरफिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से शेयर प्रेशर की वजह से आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेट में जो सारी गुड स्टफ है वो जिस्म से बाहर निकल रही है, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम among many other things, this causes scarring, fibrosis, chronic kidney disease, stage 5 and dialysis. हाइपरफिल्ट्रेशन का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स वो इस मैकेनिज्म को टारगेट करती हैं, ठीक है जी। आगे कर दीजिएगा। अच्छा, this is again a trivia. I wanted to see how many of you know this. How much function does your kidney lose before you experience any signs? Is it 90%? Is it 10%? Is it 50%? So 90%, 10%, 50%. So everybody says it's 90, and yes, it is 90. So that's you know something like, can you imagine saying कि 90% of my brain loss के बाद मुझे पता चला है कि मुझे brain का कोई मसला है, या 90% of my lungs are at defect and अब मुझे पता चला मुझे lungs, और डॉक्टर कामरान 90% of my heart is failing, now I am coming to you. But this is how we see patients, like 90% of their nephrons are lost and now they're like कुछ medicine दें, भाई फलां डॉक्टर ने तो बोला था medicine लेंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे. So that's very important.
So if you're seeing such patients, screening is the paramount. Screening अगर आप जल्दी efficient तरीके से कर सकेंगे तो you will be able to save many people from saying this, 90% of their kidney function is lost. आगे कर दीजिएगा. So what's the average salary in Pakistan or wage in Pakistan? मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी आप लोगों की क्या salary है, but I mean I was just guessing like 30,000 to 1 lakh, like for most people, right? What's the cost of dialysis? Because dialysis, chronic kidney disease, diabetic kidney disease, unfortunately is a disease of low socioeconomic status, right? Because people who are more literate will know how to take care of their diabetes, will be on Ozempic, taking good care. उनको तो जिनके पास पैसा है उनको dialysis पर आने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो बेचारे जिनकी 30,000 की सैलरी है, वो जब साल का 10 लाख निकालना पड़ेगा उनको for dialysis, that's pretty something, right? Again, I'm trying to focus. Screening is important. Preventive measures are important. आगे कर लीजिएगा. So the last part of this presentation, I'll be talking about CKD management, and this is just an overview, ताकि हम right time पे right medications के बारे में at least बात करना start कर सकें और use कर सकें. Kindly press करिएगा. So I'll start with a very easier said than done वाली website. Not website, slide, and that's you start with your life, because CKD most of the time will be in patient who has diabetes, hypertension, morbid obesity. So you try to focus on these three things. Lifestyle measures में आप उनको help कर सकें. Smoking, if they want to quit, get them to a primary care who can get them on nicotine replacement or medications for addiction. Exercise. Diet बहुत छोटा हो गया, but खैर diet there's a whole debate कि protein high protein होनी चाहिए, low protein होनी चाहिए. I'm not going to talk about that, but average अगर 1 gram per kg के हिसाब से भी अगर आप जो कि मेरा नहीं ख्याल में करीब भी आते हैं, हम लोग most of the time low protein diet ले रहे होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रोटी को जीरे वाले आलू के साथ खा रहे होते हैं, like we eat carbs with carbs, right? ऐसा ही है. And blood pressure control less than 120 over 80. Again, there's a whole at least 10 different guidelines होंगी कि 130 over 80 होना चाहिए या 120 over 80. But aim 120/80 से start करें and then tailor to your patients. G next. So I started with the conclusion slide first. This just puts everything in order. So you start with lifestyle measures, जिसके बारे में हमने बात कर ली, and then you have a whole armamentarium of medications which are now available as compared to somebody who had chronic kidney disease, let's say like 20 or 25 years ago. So आपके पास SGLT2s आ गए हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, हमारे पास RAS inhibitors आए हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, non-steroidal MRAs आए हुए हैं, GLPs आए हुए हैं. So we have medications that can slow down the progression of chronic kidney disease, work on this hyperfiltration part of the CKD, ताकि you have enough mileage left in your kidneys, ताकि by the time you die, unfortunately, all of us have to die, but by the time you die, you're still dying with a functioning kidney. So that's the whole purpose. आप reverse नहीं कर रहे. So unlike other GNs, जिसमें हम immunosuppressive देते हैं, the kidneys regain their function, diabetic kidney disease is something जिसमें आप regain नहीं कर रहे होते. All you're trying to do is slow down the progression ताकि you have enough mileage to last you for your life. आगे करिएगा. So quickly we'll start with RAS. ये medicines ऐसे नाम से आती हैं, Zestrel, Cardis, Easy Day, and the way they work is, आगे करिएगा, इस pathway पे. तो renin बेसिकली बॉडी में एक्सक्रीट होता है जब बॉडी सेंस करती है हाइपोटेंशन, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, बीपी लो होता है, सोडियम जिस्म में कम होता है, तो रेनिन एक्टिवेट होता है. रेनिन एक्टिवेट होता है तो ये आपके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जिसमें से एंजियोटेंसिन 2 को आप याद रख लें, ये पोटेंट सिस्टमिक वेजोकंस्ट्रिक्टर है, एंड ये एल्डोस्टेरॉन भी हेल्प करता है सिक्रीट करने से. सो नेट इफेक्ट ये होता है कि आपकी सोडियम वाटर रिटेंशन होती है और सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो हाइपरटेंशन होती है. ठीक है जी. तो जो मेडिसिन्स आप यूज़ करते हैं CKD को स्लो करने में, वो बेसिकली इस एक्सिस को अफेक्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ACE इनहिबिटर्स और ARBs. आगे करिएगा, एक स्टेप आगे करिएगा, ये वो मेडिसिन्स हैं. सो देयर आर मेनी, आप कुछ याद कर लें और उनकी डोज और उनकी स्टार्टिंग डोज और मैक्सिमम डोज याद कर लें. फॉर इंस्टेंस लिसनिप्रिल है 10 मिलीग्राम, ऐसे तो 5 पे भी लोग स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम 40 है. या आप एनालिप्रिल याद रख लें, 5 once a day से 40, एंड देन रैमिप्रिल है. इसी तरीके से आपके पास
कैंडासार्टन है, इबसार्टन है, लोसार्टन है. सो दीज आर डिफरेंट मेडिकेशंस जो कि हम यूज़ करते हैं एज स्टेप 1 टू स्लो डाउन द क्रॉनिक किडनी डिजीज़. तो ये दोनों चीज़ करती है, आपका ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव करती है एंड ऑल्सो स्लोज डाउन योर क्रॉनिक किडनी डिजीज़. पीछे जाइएगा. सो डायबिटीज़ नॉन डायबिटीज़ दोनों में गाइडलाइन एंड गाइडलाइंस आर मेंट टू बी ब्रोकन. नो, गाइडलाइंस पहले आप उस पर काम करें, आप उसको फॉलो करें एंड इफ़ यू हैव enough wisdom behind तो आप लिटरेचर को पढ़ें and then modify करें. But for now let's just follow guidelines. Guidelines कहते हैं कि डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ पेशेंट्स में the first step you do is you start patient on these medicines. तो अगर आपके पास ये patient आता है, you know, you can start with this medicine to begin with. Next कर दीजिएगा, आगे करें. कैसे start करनी है? So याद रखिएगा the way these medicines help other than the fact that ये RAS को inhibitor करती हैं is के hyperfiltration कम करती हैं. So hyperfiltration का मतलब ये है कि अब कम खून साफ होगा. तो जब कम खून साफ होगा तो ज़ाहिरी क्रिएटिनिन ने तो बढ़ना है. तो क्रिएटिनिन शुरू में थोड़ा सा बढ़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि शुरू में थोड़ा सा रीनल फंक्शन लॉस आएगा और यही क्रॉनिकली आपको हेल्प करता है, बट एक्यूटली थोड़ा सा ड्रॉप आता है. तो जब भी आप ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं आप 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं कि पेशेंट का पोटेशियम तो नहीं हाई हो गया क्योंकि आपने एल्डोस्टेरोन का पर्पस छोड़ दिया, और दूसरा आप ये चेक करते हैं कि कहीं GFR में ड्रॉप तो नहीं हुआ. हमने कट ऑफ रख लिया है कि अगर 30% से कम ड्रॉप आता है GFR में तो दिस इज़ अ हेल्पफुल मेडिसिन, आप कंटिन्यू करें. बट अगर ज़्यादा होता है तो देन यू होल्ड इट. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स टॉलरेट्स दिस एंड अगर नहीं करते तो आप यू कैन लुक अराउंड एंड फाइंड रीजंस. सो फॉर इंस्टेंस हाइपरकैलेमिया क्यों नहीं टॉलरेट किया? भाई ऐसे तो नहीं है ये पेशेंट दिन में 4 ग्लास ऑरेंज जूस पी रहा है और 8 केले खा रहा है. वेल यू नो दैट्स वेयर पोटेशियम इज कमिंग फ्रॉम. या कोई कंकरेंट मेडिसिन तो नहीं है जिसमें स्पाइनोलेक्टोन तो नहीं साथ ले रहा जिसकी वजह से पोटेशियम बढ़ रहा है. एंड दे कैन ईजिली मॉडिफाई. आप डायरेटिक दे सकते हैं दैट मेक्स यू पी आउट पोटेशियम ताकि इनको हार्म नहीं रहे. अराउंड 20 to 40% रिस्क रिडक्शन नज़र आया है स्टडीज़ में विद द यूज़ ऑफ दिस मेडिसिन फॉर CKD. सो इसको स्टार्ट करें एंड इसको जब आप स्टार्ट करें रिमेंबर कि जब कभी किसी वजह से भी होल्ड करना पड़े, लेट्स से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, AKI हुआ, आपने होल्ड किया, डोंट फॉरगेट टू रीस्टार्ट इट एज वेल एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज बिकॉज प्रोटेक्शन इसकी क्रॉनिकली ही है. ठीक है, आगे कर दीजिएगा. सो ये वही प्रैक्टिस पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बता दिए थे. आगे करिएगा. नेक्स्ट सेट है SGLT2s की. अब ये काफ़ी अरसे से आए हुए हैं and I do not know if you know this or not, but I would assume you know this is another tool to slow down chronic kidney disease. ये इन नाम से आपने शायद सुनी हुई हो. आगे करिएगा. और ये काम कैसे करती है इसके लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मेडिकल लिंगो के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बट बेसिकली नॉर्मली डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ज़्यादा यूरिन बन रहा होता है, ज़्यादा खून साफ हो रहा होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट पार्ट ऑफ योर किडनी जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसमें ज़्यादा सोडियम और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है. बॉडी सेंस करती है मैं ज़्यादा यूरिन बना रही हूँ और फीडबैक ये होता है कि हम उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल एंड में जो ग्रीन पार्ट नहीं है उसको मैकुला डेंसा कहते हैं, वो सेंस करता है कि कम सोडियम आ रहा है और उसको ये लगता है कि भाई परफ्यूजन किडनीज को कम मिल रही है, जिसकी वजह से वो एफरेंट आर्टीरियोल्स को डायलेट कर देता है और मजीद हाइपरफिल्ट्रेशन. सो ये एक पॉजिटिव फीडबैक बन रहा है. ठीक है. सो SGLT2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो इन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं. तो जब ब्लॉक कर देंगे इसका मतलब है ज़्यादा सोडियम और ग्लूकोज मैकुला डेंसा सेंस करेगी, किडनी इसका मैकुला डेंसा सेंस करेगा. अच्छा भाई ज़्यादा सोडियम आ रहा है, चलो भाई हमें इतनी परफ्यूजन किडनीज की नहीं चाहिए तो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर दो एफरेंट आर्टीरियोल्स को, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो इतनी हाइपर हो रही होती है वो काम डाउन हो जाती है और इस तरीके से वो लॉन्ग टर्म जरिए से उसको प्रोटेक्ट करता है. आगे करिएगा. तो SGLT2 सो फार तो हम सबको पता है हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं. कितने लोगों को पता था कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं? Well, you can. I'll just break the ice. You can. So you can use these medicines in your all stages of CKD except for CKD stage 5. लेकिन अगर कोई patient है CKD stage 5 में जो कि पहले से इन medicines पे start था, you don't stop it, you let it be. Next करिएगा. And अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसकी डोज
डायबिटिक पेशेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. सो फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं एग्जाम्पल डैपा की. डैपा 10 मिलीग्राम हम देते हैं. एम्पा हम 10 मिलीग्राम देते हैं CKD पर्पसेस में, क्योंकि ट्रायल्स में ये डोजेज यूज़ की गई हैं. बट अगर आपने ग्लूकोज कंट्रोल देना है तो उसके लिए फिर यू हैव सम रूम, तो फिर एम्पा को आप बढ़ा देते हैं अप टू 25. सेम गोज फॉर कैनाग्लिफ्लोजन, आप 100 यूज़ करते हैं अगर आपने CKD प्रोटेक्शन लेनी है. बट अगर पेशेंट को ग्लूकोज कंट्रोल भी चाहिए तो फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं. आगे करिएगा. SGLT2s के लिए आपने थोड़ी सी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नाउ यू गोना स्टार्ट पेइंग आउट शुगर, ठीक है. तो that's a nascent for infections. तो ये पेशेंट्स उन पेशेंट्स में जो कि ऑलरेडी प्रोन है ऑफ रिकरेंट UTIs और सम यूरोलॉजिक एनॉमली would not be a good thing, you know. अगेन रिस्क वर्सेस बेनिफिट आप देखते हैं कि मतलब यू नो अगर कोई एक एपिसोड UTI का हुआ तो दैट डजंट मेक सेंस कि आप उसको इससे महरूम रखें. इसके अलावा बिकॉज इट हैज़ अ डायरेटिक इफेक्ट, आप सोडियम लोड दे रहे हैं, ऑस्मोटिक लोड दे रहे हैं अपने यूरिन में, तो यू गोना पी मोर, ठीक है. तो देन यू ट्राई टू अवॉइड दीज मेडिसिन्स एंड यू कॉल इट सिक डे प्रोटोकॉल. आप पेशेंट को समझाते हैं कि जब आपको डायरिया हो या बीमार हो, बुखार वगैरह हो, तो ये मेडिसिन्स आप खुद ही होल्ड कर लें, क्योंकि ये फिर मजीद आपको डिहाइड्रेट कर देगा, ठीक है. एंड सिमिलरली दीज मेडिसिन्स कंट्रोल योर शुगर. तो अगर ये पेशेंट इंसुलिन पे भी है और आप सल्फोनाइलयूरियाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक प्रोन है तो फिर आपको उन मेडिसिन्स को भी कट डाउन करना पड़ेगा. आगे कर दीजिएगा. ये मोर और लेस द सेम थिंग व्हिच आपको मैंने अभी बताया है. नेक्स्ट कर दीजिएगा. ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. मैंने सोचा था ये नहीं डालूंगी स्लाइड, लेकिन इसका एक रीज़न है जो मैंने डाला है. बहरहाल ये MRA है. MRA इज़ नॉट न्यू फॉर यू गाइस. स्पाइरोलेक्टोन, एमेलोरॉन, ये आपने मेडिसिन के नाम सुने हुए हैं, बट ये एक नई चीज़ मार्केट में आई है कि नॉन स्टेरॉयडल है. मीनिंग के जैसे पुराने वाले आपके स्टेरॉयड रिसेप्टर्स वो ये नहीं देखते थे कि ये एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर है या ये सेक्स हार्मोन का है या ये स्टेरॉयड कोर्टिसोल का है, वो सबको ब्लॉक करता था. ये ऐसा नहीं करता, ये सिर्फ एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को करता है और वही प्रॉब्लमैटिक है. आगे करिएगा. मैंने यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने अभी बोली है. आगे कर लें. And so the guidelines still are not very straightforward about where to use, because जो study जिसने इसको अलाउ किया था और FDA अप्रूवल लिया था वही 2021 में आई है और 2024 चल रहा है. तो जहाँ पर ये भी आई है उनको खुद नहीं पता, तो अभी तो टाइम लगेगा. प्लस इसका पेटेंट काफ़ी लंबा है. सो 20 जो कि किसी भी मेडिसिन का होता है, तो 2035 से पहले तो ये मेडिसिन जेनेरिक्स बनाएगी नहीं. इसका मतलब ये 2035 तक इस मेडिसिन को तो आप भूल जाएं. बट नेक्स्ट करिएगा. आगे कर दीजिएगा. ओह एक्चुअली वो स्लाइड चली गई, अब पीछे कर. बट इसका जो स्पाइरोलेक्टोन वर्जन है जो कि हम सबके पास अवेलेबल है, मैंने सिर्फ ये पॉइंट आउट करना था कि कभी हाइपरटेंशन को आपको ट्रीट करने के लिए लेट्स से you're लाइक यार अभी भी इस 3 एजेंट्स पर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो स्पाइरोलेक्टोन विल बी अ गुड चॉइस ऑफ ड्रग टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो टू स्लो डाउन CKD प्रोग्रेशन. जैसे हमने देखा कि इसका जो नॉन स्टेरॉयडल वर्जन है वो हेल्प करता है, ठीक है. आगे कर दीजिएगा. हाँ जी. एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट Ozempic. एवरीबडी इज फेमिलियर, वेट लॉस कराता है, बट गेस व्हाट, CKD प्रोग्रेशन को भी स्लो डाउन कराता है. विक्टोजा के नाम से भी ये मेडिसिन अवेलेबल है. आगे करिएगा. एंड सो द वे इट हेल्प्स स्लो डाउन CKD इज बाय हेल्पिंग अगेन टू नेट्रोयूरेसिस और डायूरेसिस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है. एंड हार्ट पेशेंट्स को भी स्टडीज हैव शोन कि उसके भी हार्ट आउटकम्स कम करते हैं इस मेडिसिन से. GLPs आगे करिएगा. सो GLPs हम किन पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं. नॉन डायबिटिक में अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ट्रेंड जा रहा है उसमें भी शायद आ जाएगा. जैसे आप SGLT2s यूज़ करते हैं तो हो सकता है इन कमिंग टाइम्स उसको भी आप यूज़ कर सकते हो. बहरहाल डायबिटीज़ के वो पेशेंट्स जो कि मेटफॉर्मिन पर है और सीटाग्लिप्टिन पर हैं और उनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो आप Ozempic यूज़ कर सकते हैं. Ozempic की एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप Ozempic स्टार्ट करते हैं तो फिर सीटाग्लिप्टिन को होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है आउटकम वाइज अगर मैं बात करूँ तो. वन ऑफ द 2 मेडिसिन आप रखते हैं. Ozempic is very costly, as most of you would know, and so you choose your patient population जो ले सकती है. आगे करिएगा.
ये वो मेडिसिन हैं semaglutide, वीकली इंजेक्शंस में भी अवेलेबल हैं, सो पेशेंट्स लाइक दैम बिकॉज ऑफ कंप्लायंस एज अपोज टू इंसुलिन जो कि दिन में 3 दफ़ा लगानी है फॉर 7 days. Try telling that to the patient कि आपने सिर्फ once a week एक इंजेक्शन लगाना है, and you know some would love that idea. आगे करिएगा. So with that I end this presentation. मेरा एम इस प्रेजेंटेशन का ये था कि हम जिस तरह डायबिटीज़ को बहुत विजिलेंटली अपने हर पेशेंट में डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, इस तरह हम कोशिश करें कि हम CKD भी करें, बिकॉज जैसे मैंने दिखाया द प्रेवलेंस ऑफ CKD इज़ ट्वाइस दैट ऑफ डायबिटीज़. तो जब भी आप पेशेंट देखते हैं जहाँ आप A1C ऑर्डर करें उसके साथ सीरम क्रिएटिनिन ऑर्डर कर लें. डॉक्टर अजरा और मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद बैठेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हम GFR भी रिपोर्ट करना शुरू कर दें अपनी रिपोर्ट्स में, बिकॉज सीरम क्रिएटिनिन अलोन यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और GFR इज़ अ बेटर पिक्चर ऑफ टेलिंग हाउ द किडनीज आर डूइंग. CKD एपी पाकिस्तान एक इक्वेशन हमारी पॉपुलेशन में अगर बनी हुई है और स्टैंडर्डाइज हुई हुई है तो इट वुड बी नाइस टू सी इट्स यूज़. हम दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं ना रिपोर्ट, CKD एपी की वजह से क्या GFR आ रहा है या एपी पाकिस्तान की वजह से. All your CKD patients should be treated in a holistic manner. You have dearth of nephrologists in Pakistan and actually worldwide, and that's true for most specialities. So we will, you know, until we have some nice national level policies, we'll have to take help from people, you know, who are not nephrologists as well. You also timely pick up this disease and, you know, send the right referrals to the nephrologist at the time, ताकि जो transition है, you know, from having advanced CKD to needing a dialysis or a transplant can be done in a timely fashion. As opposed to, you know, just, you know, landing, crashing in the hospital with, like, you know, potassium of 7 or 9 and, you know, pulmonary edema, and then, you know, just starting dialysis like that. So, and the last but not least, to make favorite cheese tea, make a habit of, we are doctors, we prescribe, but make a habit of de-prescribing as well. That is difficult and against the practice of like how people practice medicine in Pakistan, but polypharmacy, you know, आपके CKD stage 5 के patients आराम से 10 medicines पर होते हैं, तो अगर आप उनको मज़ीद medicines देते जाएंगे वो list तो बढ़ती जाएगी, वो patient ने कभी लेना नहीं है, and that just adds to the misery. So with that I end my presentation.